Whatever whatever you send out in thought, word, or deed comes back to you just like a boomerang. And when there's a strong emotion behind what is sent out, what comes back is multiplied. Whether we are thinking or speaking about ourselves or someone else, the energy of boomerang of what we sent out returns to us. And whether we are thinking or speaking about something we want or something we don't want, it returns to us. Of course, this is a great news because it means that you can deliberately send out thoughts of prosperity and abundance. And if you put a lot of feeling behind it, you can have the content of those thoughts and return to you. When I was first changing my mindset from scarcity mindset to a wealth mindset, I tried many different practices and also created many of my own. All of the practices I found to be the most powerful are contained in this journey of 21 days to manifesting riches. But one practice I absolutely loved was the practice of giving money away. The idea was that in giving money to others, I would feel some positive feelings about money instead of usual negative feelings of worry, fear, and resistance. At the time, I was in lot of debt. I had no money in the bank. My credit cards were almost to the max, and understandably, I was experiencing a lot of negative feelings about the lack of money I had. On this particular day, I went to an ATM and drew out some $20 bills from my credit card. I walked down a busy street trying to choose who to give each $20 bill to. I looked at each person's face and imagined giving it to them as I passed them. My biggest difficulty was that I wanted to give the money to everyone. I felt impossible to choose, but in the process of imagining giving the money to each person, my heart completely melted and I had tears in my eyes. Even before I had given the first $20 bill, I had completely changed the way I felt about money. I ended up asking the universe to show me to give the money to, and it presented me with two separate situations where I overheard people expressing that they didn't have enough money to buy something. I was able to step in that moment and hand them $20. I only ended up giving away two $20 bills that day, but in my imagination, I gave $20 to well over 100 people. It's important to say that I didn't set out to give money away to bring money to me. तो अभी पहले हम इतना कर लेते हैं। Like, यहाँ पे रोंडा बहन ये कहती हैं कि जो भी हमारी लाइफ में है, जो भी यू कैन हैव इन योर लाइफ, जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हारे पास है। इफ यू विल जस्ट हेल्प अनदर पीपल्स, व्हाट, अगर आपके जीवन में वही चीजें हैं जो आपने कभी किसी को दी थी, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, भले वो स्माइल है, भले वो कुछ भी है, वो आपके पास वापस आना ही है। आपने देखा ही होगा कि हम किसी को, वैसे तो हम स्माइल नहीं करते ना, इंडियंस को तो बहुत कम आदत है। मैं मतलब बुरा नहीं बोल रही, शायद यहाँ का हम लोगों का ना वो भी है थोड़ा सा, एक the सोशल mindset is different माइंडसेट because नहीं, मतलब बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा कोई कोई मतलब कोई नेगेटिव अपोजिट बंदा, अपोजिट सेक्स वाला भी स्माइल करेगा तो वो गलत, मतलब थोड़ा सा यहाँ का थोड़ा सा वो थोड़ा हाँ, रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो लेकिन हमने बाहर जैसे देखा कि सब एक दूसरे को देख के स्माइल करते, ये नहीं कि वहां के लोग, लेकिन आपको स्माइल मिलती है ना वापसी में। सबसे बड़ी बात कहने का, सिर्फ कहने का मतलब है कि आपने दी तो आपको मिलेगी। आप स्माइल करके देखो। मैं कह रही हूँ चलो हम लेडी हैं, एज अ लेडी हम किसी को स्माइल करते हैं, कभी अननोन
अननोन, जैसे कभी कोई मैरिज में आप नहीं जानते बट आप अननोन को स्माइल किया तो आपको यू विल, आपको वापस आएगी, हमेशा आएगी, वो भी स्माइल कर ही देगा आपको। तो लाइक वैसे ही वो कह रहे हैं कि थॉट वर्ड्स डीड के बारे में तो हमने सुना ही है कि जो भी थॉट्स वर्ड्स और डीड, जो आप जो भी वचन कर्म और विचार से जो भी चीज आप किसी को दे रहे हो, वो आपका वो स्ट्रॉन्ग इमोशन मल्टीप्लाई होके आएगा, मतलब कई गुना होके आएगा। तो अब आप ये समझ लो कि अब आपको क्या बोलना है और क्या सोचना है। कितनी बड़ी बात लिखी है। हम इस जर्नी में आने के बाद क्या सीख रहे हैं? वो सोचो जो चाहिए, वो सोचो जो चाहिए, बट हम क्या करते रहते हैं, वो सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए, हम उसकी ही बातें करते रहते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, खुद के लिए या किसी के लिए, उसका तो बूमरैंग होना ही है, वो आपके पास आना ही है। आप देखिए कि आप वो चीज चाहते हैं अपने जीवन में कि नहीं चाहते। डू यू वांट दिस और समथिंग यू डोंट वांट दिस। जो चीज आप नहीं चाहते, आप बोल रहे हो कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए, तो वो आएंगे बिकॉज आप बोल रहे हो। आप क्या बोल रहे हो? यू डोंट वांट, लेकिन वांट डोंट का तो कुछ काम है ही नहीं। तो वो यही कह रहे हैं कि इसी बात को लेके वो कहती है प्रोस्पेरिटी। अभी यहाँ पे वो थिंकिंग और स्पीकिंग की बात करते करते वो आ गई प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस पे। वो कह रही है सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस के ऊपर, कि अगर आप किसी को बहुत फीलिंग के साथ वो चीज देते हो, तो यू आपको वो चीज वापस आनी है। उसके अंदर थॉट्स आपने कौन से लगाए हैं किसी चीज को देने के लिए, डेलिबरेटली आपको, क्योंकि मनी देना ना हमको डेलिब्रेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोगों को हैबिट में नहीं है। अब वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहती कि मैंने अपना पहला माइंडसेट कहाँ चेंज किया। वो सच में ही उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा मैंने अपना माइंडसेट को चेंज किया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, मैंने कुछ लोगों की अप्लाई की, कुछ अपनी खुद की बनाई कि ये कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। और इसमें से जो आज की प्रैक्टिस है, वो कह रहे हैं ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है जो मैंने अप्लाई की अपनी लाइफ में। तो इसमें से यही कह रहे कि इसका आइडिया ये था कि अगर आप किसी को पॉजिटिव फीलिंग के साथ पैसे देते हो, हमारी क्या होती है फीलिंग पैसे देते समय, खासकर नेगेटिव होती है, वरी की होती है, फियर होती है, रेजिस्टेंस होती है। हमको लगता है कम हो रहा है, मेरे अकाउंट से नीचे जा रहा है, हमारे फियर आता है किसी को देने में, हम बहुत 100 बारी सोचते हैं। तो वो बोल रहे कि यूजुअली हमारी फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं, लेकिन करना क्या है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ देना है। अब वो बता रही हैं कि जब वो सीक्रेट बुक, मतलब जो मूवी बना रही थी, यहाँ पे सीक्रेट मूवी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है एक ऐसा समय था मैं बहुत कर्जे में थी, मेरे बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी थी। अब मुझे पैसे के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दिन उन्हें ऐसा ख्याल आया, क्योंकि ये वाला जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बता रही हैं। मैं एटीएम गई, वहां से मैंने $20 वहां से निकाले अपने क्रेडिट कार्ड से। मतलब वो भी उधार के पैसे दे रही है, जो उन्होंने बांटने वो भी उधार के ही हैं, वो भी बैंक से क्रेडिट ही लिया है, उसके उनके अपने पैसे नहीं है। और मैं उसको एक बिजी स्ट्रीट पे लेके, वो चलती हुई सड़क पे लेके मैं आ गई। मैंने सोचा कि ये $20 किसको दूं। कहती मैं अब हर पर्सन के फेस को देखती थी और ये इमेजिन करती थी, ये पहले तो ये चूज करती थी कि किसको दूं। बिल्कुल मैं, मेरे साथ भी ये कंडीशन, बिल्कुल यही कंडीशन होती। मैं कई बार अपना यार समझ नहीं आता किसको दूं। तो वही बोल रही है कि मैं को समझ नहीं आ रहा था मैं किसको दूं। हर पर्सन के फेस को देखती थी, इमेजिन करती थी और दे देती थी इमेजिनेशन में। आप सुन रहे हो कि वो इमेजिनेशन में दे देती थी कि वो उसके पास, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बोल रही कि माई बिगेस्ट डिफिकल्टी वॉज दैट आई वॉन्टेड टू गिव मनी टू एवरीवन। मैं हर किसी को देना चाहती हूँ, बट मेरे मेरे चूज नहीं कर पा रही थी, इसको दूं कि उसको दूं। अब उन्होंने इमेजिनेशन में वो मनी देना शुरू किया कि जो पर्सन निकल रहा है मैंने इसको भी दे दिए $20,
उस अगला आया उसको भी दे दिए। और जब मैं दे रही हूँ उस समय अपनी फीलिंग कि माय हार्ट इज मेल्टेड, मेरा दिल पिघल रहा है उसके लिए, मेरे आंखों में आंसू है कि शायद आज इसका कोई काम बन जाएगा। तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज, मतलब फुल इमोशंस के साथ उन्होंने पहले $20 एक पर्सन को दिए। कहते हैं जब वो $20 मैंने उसको दिए, मेरे अंदर की फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो गई। आई कंप्लीटली, मेरा मनी के लिए थॉट बिल्कुल चेंज हो गया। और मैंने यूनिवर्स को कहा कि मेरे को बता कि मैं किसको मनी दूं, मेरे पास मैं सिर्फ 2 लोगों को दे सकती हूँ। तब मैंने किसी को किसी से बात करते हुए सुना कि वो कुछ खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने फट से जाके उसको वो $20 दे दिए, बिकॉज उसको वो पर्सन मिल गया। मैंने आपको जैसे अभी कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे साथ भी हुआ कि मेरे मदर लोग बोलते थे तुझे कहाँ से कोई मिल जाता है, बिकॉज इंटेंशन थी, रोंडा बन की इंटेंशन थी कि मुझे किसको दूं। उन्होंने वो जाके झटपट जो ओरिजिनल, अभी तक तो उन्होंने इमेजिनेशन में दिए, बट वो $20 उन्होंने उस पर्सन को दिए जिसको जरूरत थी, जो बात कर रहा था। ओवर हियर किया उन्होंने कि उसको वो, आई ओवर हियर द पीपल एक्सप्रेसिंग दैट डे दे डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। एंड आई वाज स्टेप आउट एट दैट मोमेंट एंड हैंड द मनी, उनको हाथ में पकड़ा दिया वो पैसे। आई ओनली एंडेड अप गिविंग 20, सिर्फ दो लोगों को मैंने $20 दिए, या 20 हो गए तो 10 10 दिए। तो वो कह रहे मैंने सिर्फ 2 लोगों को पैसे दिए थे उस दिन, बट इमेजिनेशन में आई गिव 100 पीपल, मैंने 100 लोगों को पैसे दिए इमेजिनेशन में। तो हमारा जो मन है ना, जो हम बोले ना सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसको सही और गलत, झूठ और सच कुछ नहीं पता। it's important to say I didn't set out to give money away to bring more। और मैंने इस इंटेंशन से भी नहीं दिए थे कि ये पैसे मेरे पास वापस आए। मुझे अपना मनी के लिए परसेप्शन चेंज करना था कि देने से क्यों डर लगता है, देने से क्यों घुटन होती है, देने से रेजिस्टेंस क्यों आती है। उन्होंने अपनी फीलिंग को चेंज करने के लिए दिए थे। वो साफ साफ कह रही है कि आप भी ऐसे सोच के मत दो कि मैं दे रही हूं तो मेरे पास आएगा। तो बोले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से आई डिडंट सेट आउट गिव मनी अवे टू ब्रिंग मोर मनी टू मी, लेकिन सोच बदलनी थी कि मैं अमीर हूं, मैं दे सकती हूँ, आई एम सो रिच, मैं दे सकती हूँ, मेरे पास है, मैं दे सकती हूँ। लेकिन क्या होता है, वरी, रेजिस्टेंस और फियर, ये जो 3 थॉट्स हैं उसको वो ओवरकम करना चाहती हूँ। आई होप मैंने क्लियर किया है आप लोगों को। आगे चले। Yes. जी। Add to it is that there is there is a thing called OC, OCWA. It's called the smile therapy, and Japanese use it often because हम्म। when they smile and initiate, they acknowledge that you have, even if you have not provided them any service, हम्म। but it's just the acknowledgement of your existence. जैसे कभी किसी को लिफ्ट में मिलते हो, हेलो हाय बोल दिया, जानते भी नहीं होते कि ये कौन से फ्लोर में रहते हैं हाँ जी, हाँ या जी, मैंने कहाँ देखा है। काम करते हैं। यस, तो मैंने देखा है। और जापान में ये बहुत ज्यादा कॉमन है नहीं नहीं, बिकॉज मैंने मैंने यूएस और कनाडा में भी देखा है ये सब। या या बिल्कुल हियर मैंने। ऑल्सो इन सिंगापुर ऑल्सो इट्स द सेम। इवन हम्म। इफ यू डोंट नो, हमारे फ्लोर पे जो लोग रहते हैं हम तो नहीं जानते, हार्डली कोई जान पहचान है, और पिछले 11 साल से रह रहे हैं। पर जब भी मिलते हैं, जैसे कभी दरवाजा उनका खुला हमारा खुला, लिफ्ट में जा रहे हैं साथ में, हेलो हाउ आर यू, हाउ इज योर डे, बस उतना। हाँ। पर देर इज अ वेरी वो प्लेजेंट वे ऑफ प्लेजेंट वे, टॉकिंग हाँ एंड वो एक्सचेंजिंग, जेस्चर्स। चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, हाँ। उसमें देर इज नो डिफरेंस। हाँ। यस। एंड आई पीपल ऑल्सो फील डू दैट। एक्नॉलेज योर, अरे ये तो मतलब, और बाद में कभी मिलते हैं, नीचे मिलेंगे, वेटिंग फॉर कैब, जैसे ऐसे पूछेंगे वेयर यस। आर यू गोइंग। जैसे कपड़े इंडियन पहने तो पूछेंगे कि आपने ये पहने क्यों है, आज कोई स्पेशल फेस्टिवल है। नॉर्मली तो इंडियन कपड़ों में और नहीं जबकि देखते। मतलब हम लोग कभी ऐसे यहाँ पे अननोन लोगों से बात नहीं करते ना, मतलब भले हाँ समझ भी आ रहा होता है तो भी नहीं करते तो। हाँ बल्कि हम लोग तो यहाँ पे फिर भी एक लैंग्वेज वाले लोग हैं, फिर भी नहीं करते। वहां पे लोग लैंग्वेज भी नहीं समझते, कई बार तो हाँ। फ्रेंच होते हैं, बट फिर भी लोग स्माइल दे के Like when आपको। I go to India, I when I go out to walk in the park, I'll say hello, hi.
People must like they must be thinking, wow, this woman doesn't even know us, and but she हम्म, just still says hello, hi to us. और they वो मेरे just मम्मी look के through घर you. के सामने। हाँ जी। They just look through you. Yeah, they actually look through me हम्म, and then आप नए आए हो पूछेंगे। हाँ, मैंने कहा, yes. नहीं, यहाँ पे तो पिछले 35 साल से इस 40 साल से इस घर में मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं, तो हम हम्म, हर साल आते हैं। हम्म, So they just look through you as if they've never seen you. And every year we have gone back to India during our holidays. When my daughter used to go to school, winter break was always going to India. हम्म, And बिल्कुल। now we go so often to India. हाँ, But still they don't acknowledge this. And if नहीं, I talk to a यहाँ पे guy नहीं, and यहाँ पे थोड़ा then सा especially इस चीज after को my father लेके, passed बल्कि away, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है लोगों में, लोग नहीं करते हैं। मतलब इवन आप yeah, कॉलोनी में भी देखो, जो 4 घर आप जानते हो वही लोग आपको हेलो हाय करेंगे, उसके अलावा नहीं करते। हाँ, ये हम्म, बात सही है। हम्म, I gave it away so I would feel good about money. I wanted to change a lifetime of feeling bad about money. But if you do give money away and if you feel love and when you give it, most surely it will return to you multiplied. I did my practice on Friday afternoon. On the following Monday, just 48 hours later, $25,000 was deposited into my account for a business situation I knew nothing about. And then 24 hours after, another 10,000 was deposited into my account from another unexpected situation. I received 35,000 in my bank account within several days of giving away just $40, but mentally giving away hundreds. I knew without a doubt it was due to my practice, due to the depth of feeling I had experienced that day, and because I had imagined giving away to many people. Today, you're going to visualize giving money away to complete strangers. Imagine that you are holding a large handful of $100 bills. Your pocket are also filled with $100 bills, so you are not going to run out. With every single person you pass by or connect with, look at their face and imagine giving away with each of them $100 bill. Try and do this with as many people as you can, but at minimum, do it with 40 people. Make sure to do this practice at one time rather than splitting it up over the day because a concentrated effort will help your depth of feeling. If you are not in a situation to pass 40 people today, then do it at the first opportunity where you are among the other people. Remember, whatever you send out in thoughts, words, or deed comes back to you. And with strong feeling, it will come back multiplied. The universal law is going to respond to your imagination as though it's real. And this practice is telling the law that you have so much money you're giving away. Remember, be grateful uh, when you receive any money. Continue with the practice. Turn outgoing money into income money. Listen to the wealth affirmation recording as you go to sleep tonight. ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और मैं भी नहीं कर पाई आज तक इसको। मैं तो यही बोलूंगी, मैंने बुक पढ़ी थी, मुझे वो, क्योंकि वो बोलती वन गो में करना है ना। तो अब प्रैक्टिस क्या है, वैसे तो चलो सबको समझ आई गई है, बट जिनको थोड़ा सा हिंदी में है मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज यही है कि आई गिव इट अवे सो आई वुड फील गुड अबाउट मनी। मैंने इसलिए पैसे बांटे थे उस दिन, वो जो 20-20 डॉलर के 2 बिल्स, उन्होंने 2 20-20 डॉलर के नोट जो दिए थे, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं फील करना चाहती कि देने के बाद अच्छा लगना चाहिए, देने के बाद अच्छा लगना चाहिए, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा आई वांटेड टू चेंज लाइफ टाइम, क्योंकि मैंने लाइफ टाइम मनी के लिए बैड ही फील किया है, कम हो रहा है, जा रहा है, दूं कि नहीं दूं, वरी, रेजिस्टेंस, और
फियर। बट इफ यू डू गिव मनी अवे एंड, और जब आपको उसको देते समय प्यार आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये मतलब खुशी खुशी जा रहा है और खुशी खुशी आ रहा है, तो वो खुशी खुशी आएगा। क्योंकि आपको पता है कि मनी सर्कुलेट करता है। हम इंडिया में भी ये बात बोलते हैं कि ना, लक्ष्मी चंचल है, वो टिकती नहीं है, उसको जाना पसंद है। लेकिन फिर भी हम लोग ये बात नहीं समझते। जबकि मैं बोल रही ना, ये सारी प्रैक्टिसेस इंडियंस को सब पता होंगी, लेकिन बुक रोंडाबन ने लिख दी और आज हम उसको पढ़ रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ। आपने ना बहुत सारी, मैंने बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स इंडियंस भी पढ़ी हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम वही ना, जिस उसकी प्रैक्टिसेस इतनी आसान कर दी हैं उसने, और इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी इतनी अच्छी बुक नहीं जितनी अच्छी मैजिक है, और जबकि इजीएस्ट बुक है, और इतनी ज्यादा रिपीटेशन है कि बच्चों को पढ़ के लगता है मम्मा 6 6 बार एक ही लाइन को बोलती है। मतलब लिटरली कह रही हूँ, वे तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बट रिपीटेशन कितना है उसमें, बहुत रिपीटेशन है। पहले भी बोल रही है, बीच में भी बोलती है, लास्ट में खत्म होते भी टू प्रैक्टिस नंबर दिस दिस दिस। कितना रिपीटेशन है उस बुक में। अगर कोई बुक रीडिंग करता होगा ना, उसको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। पर वही बात है कि हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि वाई। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो $20, 20 20 डॉलर के 2 बिल्स जो दिए थे, वो मैंने फ्राइडे आफ्टरनून दिए थे। और फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को मेरे अकाउंट में $25,000 एक बिजनेस अकाउंट से आए, जो कि मेरी नॉलेज में नहीं था, मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं था। कोई ऐसी सिचुएशन में वो पैसे थे जो मुझे आने थे, बट मुझे नहीं पता था, और आ गए। और उसके बाद 24 आवर्स के बाद 10,000 और आ गए। तो वो ये कह रही कि जो $35,000 मेरे अकाउंट में आए हैं विद इन फ्यू डेज, मैंने क्या दिया, जस्ट $40। बट मंथ से मैंने कितने दिए थे, 100, हंड्रेड्स ऑफ। तो वो भी आज आपको यही प्रैक्टिस समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मैंने ये प्रैक्टिस की थी, तो मेरे को आए। आई हैव नो डाउट, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मेरे $40 देने के बाद ही आए हैं। इसीलिए मैं आपको भी कहती हूँ कि आप मनी देने का एक्सपीरियंस करिए, कि मनी देने के बाद कैसा लगता है। मैंने वो जो महसूस किया था, आप भी करोगे। तो आपने आज मनी देना है कंप्लीट स्ट्रेंजर को, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अब उन्होंने बोला कि आपने इमेजिनेशन में एक 100 के नोट की गड्डी पकड़ लेनी है, और उतने ही जेब में भी डाल लेने हैं। क्योंकि जब आप देने जा रहे हो इमेजिनेशन में, आप तो मतलब समझ रहे हैं कि वो इमेजिन करना है कि मेरे पास 100 के नोट की गड्डी है, और पॉकेट में भी है, और आप क्रॉस हो रहे हो और सबको यूं 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 दे रहे हो। आपको एवरी सिंगल पर्सन को देना है, दिल से, खुश होके, कनेक्ट होके। आपको देते समय खुशी होनी चाहिए, इमेजिन करना है। और इसको उन्होंने बोला, आज आप 40 लोगों के साथ करेंगे, और मेक श्योर करिए कि ये वन टाइम में हो, क्योंकि वन टाइम में करने के बाद आपको कितनी खुशी होगी कि यार आज मैंने $4,000 बांटे। वो वाली फीलिंग। वो कह रही है कि अगर आप नहीं आज कर सकते ना, तो वेट करो उस अपॉर्चुनिटी का जिस दिन आप 40 लोगों को दे पाओगे। वो कह रहे कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि गड्डी रखो। वो इसलिए कह रही है कि आप ये ना बोलो कि मेरे 100 नोट बढ़ गए, फिर मेरे कम पड़ गए। बोलती है यू रन आउट नहीं होना। आपको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए। आपको लगना चाहिए अभी तो और बाकी है। तो मतलब एक सिर्फ सिंपल से समझ के फीलिंग के साथ करनी है। और मैं तो यही कहूंगी कि ठीक है, उसने 2 दिए थे, हम भी 2 दे सकते हैं। तो 40 में से 2 तो हम दे ही सकते हैं। मुझे ऐसा ख्याल अभी आया, अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ। ये नहीं कि आपके लिए बोल रही हूँ, कि हाँ 2 नोट तो हमको दे ही देने चाहिए। जब हम 40 को दे रहे हैं, तो उसमें से 2 को तो हमको दे ही देने चाहिए। क्योंकि तभी हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, तभी हमारा फियर कम होगा, तभी हमारे अंदर से वरी कम होगी। बिकॉज जब हम किसी को बोल रहे, हम लोग क्यों, हमारे घर में इतना क्लटर क्यों है, मतलब क्यों है हम लोग, क्यों, क्योंकि बिकॉज वही जो हम मोह माया में जो फंसे हुए हैं, मैं भी हूँ, आई एम द सेम पर्सन। तो हम कई बार चीजें निकालते हैं सर्दियों की, फिर वापस रख देते हैं अगली सर्दियों में, फिर अगली गर्मियों में निकालते हैं, फिर रख देते हैं, हम पहनते भी नहीं है। बट हमको देते समय वो रेजिस्टेंस है, तो वो
वो चीज को हमको धीरे धीरे मैं तो कम इसलिए करना रखती हूँ, तो आई माइट कम डाउन टू लोअर वेट, देन आई माइट फिट इनटू हाँ, बैक बस इनटू वही इट। बोल रही हूँ ना, यही चीज होती है, कभी मुझे यहाँ पे पूरा तो आ विंटर जाएगा, समर का है ही कभी नहीं। कोई मौका होगा, मैं कोई। तो स्टाइल का वेट करती हूँ। स्टाइल ये वापस आएगा जरूर। ओ वाओ, हाँ। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई एम गोइंग टू फिट इनटू इट अगेन। हाँ, तो वही मुझे याद है, मैंने भी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ना अपना कोट दिया, मैं इतनी खुश हो गई थी जब मेरी नई नई शादी, तो उस समय लंबे लंबे कोट चलते थे पर उनके कॉलर्स बड़े बड़े होते थे। मैं तब इतनी खुश हुई थी ना, मतलब मैंने पता सी लंबे कोट दा फैशन आएगा, मैं कहा तुसी इतने साल दा संभाल के रखा। पर चलो मैंने बहुत कम पहना बिकॉज कॉलर्स बहुत बड़े थे। बट वही कह रही हूँ कि हर किसी को होता है, हर किसी को मोह होता है चीजों से, है ना, ये हम ह्यूमन बीइंग है। और ये बुक उसने कोई सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिखी है, उसको ह्यूमन मेंटालिटी पता है। रोंडा बन को पता है कि एवरी पर्सन इज लाइक दैट। वो कोई एवरी ब्लेम ह्यूमन नहीं बीइंग इज कर रही सेम। इसके लिए, बिल्कुल भी कोई भी बंदा गिल्ट में ना जाए कि वो हमको बोल रही है, वो सबको बोल रही है, और हम सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो सही इजी भाषा में ठीक है ना, पर बोलूं। बेटे जी हमें हमें लगता है कि ये कभी ना कभी काम आ जाएगा। अरे तो अरे रोंडापन कोई गलत, मैं तो बोल रही हूँ ना, आई एम इंक्लूड, मतलब मैं यही बोल रही हूँ कि मैं जो तुमको बोल रही हूँ ना, मैं इंक्लूडेड हूँ। मतलब देखो रोंडापन ने क्यों बोला, ये रोंडापन चाहती तो वो बोलती ना, सिलेक्टिव पीपल को बोलती वो। उसने ये क्यों लिखा, उसने को बोला एवरी पर्सन ऐसा ही है, सबको फियर है, रेजिस्टेंस है, वरी है मनी के मामले में। और आज ही मैंने एमएमबीजी में पढ़ा कि मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। लेट मिनिमलिस्टिक गो होना, व्हाट या लेट गो व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। मिनिमलिस्टिक का लेट गो। मैंने अभी रिसेंटली एक ग्रुप ज्वाइन किया मिनिमलिस्टिक का, अभी तो बहुत सारी चीजें वो डीक्लटर करवा रहे हैं हमसे। चलो देखते हैं, अभी मैं कितनी अभी प्रैक्टिकल कर पाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट सच में मैं, declutter in the head or declutter at home? दोनों, दोनों, दोनों। दोनों। डिजिटल डिजिटल डी क्लटर भी होता है, फोन भी साफ अभी करो। रिसेंटली किसी ने कहा, मतलब अभी कोई बोल रहा था, हाँ मनीषा जी ने, किसने बोला था कि वो किसी के घर गई, उधर बीके, किसी बीके के घर गई, तो वो उनके घर गई, तो उनके घर में वो उन्होंने मतलब पूरी फॉलो करती थी, तो उन्होंने, वो शी इज अ मिनिमलिस्टिक, तो बोलते उसके घर में एक बेड था, एक टेबल था, और वाइट साड़ियां थी, और थोड़ा सा फर्नीचर था, और बोलती इसके अलावा जरूरत नहीं होती। मैंने कहा सच बात है, जरूरत। बिट्टी जी हम मैंने लोग भी शेयर ना, किया जो, था। हाँ आपने, हाँ मैंने कहा किसी ने बोला था, सपना जी ने, मेरे कोई मेरी नाम नहीं याद। फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड। हाँ इनके स्कूल फ्रेंड, मैंने कहा किसी ने मुझे बताया, मुझे नाम नहीं याद, क्योंकि मनीषा जी बहुत बात करती है ना बीके की, इसलिए मनीषा जी का नाम दिमाग में आ गया, सपना जी ने बोला था मुझे ये बात बताई। तो मिनिमलिज्म एक बहुत, मैं आपको खुद कह रही हूँ कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस, है ना, हंड्रेड्स ऑफ ड्रेसेस तो हैं सबके पास, हम लोग अब इस स्टेज पे हैं। बट हम 20 या 10 ड्रेसेस बहुत ज्यादा पहनते, 90 की तो हम कभी कभी पहनते, तो मतलब हमारा 10 में गुजारा हो सकता है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे लाइफ में वो लेसन क्यों आया, मेरी मेड नहीं थी, जब मैं ड्यूरिंग वापस आई हूँ कनाडा से, अमेरिका से, तो क्योंकि मेड को हटा चली गई थी, तो वो थी नहीं और मिली नहीं मुझे आके, मैंने 2 महीने खुद अपने यूटेंसिल्स वॉश किए, तो नेचुरली ब्रेकफास्ट क्या धो लिए, लंच क्या धो लिए, और लिटरली कह रही हूँ 2 कटोरी, 2 प्लेट, 4 चम्मच, 4 ग्लास से गुजारा हो रहा था आराम से, क्योंकि मैं निकालती नहीं थी। और मेरे को लगता था यार इतने से बर्तन से तो हमारा गुजारा रहा है, हमने इतनी इतनी अलमारियां भरी हुई हैं क्रॉकरी के साथ। तब मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कितना क्लटर इकट्ठा करते हैं, मतलब किसने यूज करना है। जो बच्चे हमारे वैसे प्रदेश में रहते हैं, उन्होंने आना है देखने के लिए, वो बोलेंगे वहीं डिस्पोज ऑफ कर दो, फेंक दो बाहर। तब मुझे Even थोड़ी, when during COVID time, when we were not going out and we were like just using minimum clothes, like जो घर में पहनने वाले कप, even I was working at that time, but still जैसे ऊपर टॉप चेंज कर लिया and Zoom पे I used to take my classes and उसमें भी like sorry, there was hardly any need of clothes, like या literally 5 tops which I just wore during the class time, या कोट पहन लिया या जैकेट पहन ली, क्लास ली, उसके बाद खत्म, and then I would be back in my हाँ, own house clothes. I would be wearing t-shirt और जो भी shorts पहन के। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि 5 कपड़ों में भी हमारा गुजारा हो रहा था।
हाँ And when I go to US, because here we have the luxury of somebody ironing our clothes. In US, when you go, you don't have the luxury of take out from the washing machine, fold it and wear it, or iron it yourself. It is like that in US. So I always take clothes which I don't need to be ironed. हम्म So तो I अभी basically take 10 clothes which don't need to be ironed, and मैं मैं तो वही वही 10 बोल रही हूँ कपड़ों में आप, पूरा नहीं तो ट्रिप मैं खत्म तो कर। आपको बोल रही हूँ इतने भरे हुए घर में भी आप 20 जोड़े ही पहनते हो, वो 80 पड़े रहते हैं। वो कभी या तो हम उसको सीजन संभालते रहते हैं, या फिर हम ओकेजन की वेट करते हैं, या तो हम उसको फिर वही है कि मोह माया में फंसे हुए हैं कि अंदर रख दिए, निकाल दिए, इधर रख दिए, उस अलमारी से इस अलमारी में। वो 80 वो प्यार ही हमको 20 से, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, वो कोजी है, समर्स में विंटर्स में वो कूल है, मतलब जो भी, सॉरी वाइस वर्सा उल्टा बोल रही हूँ। तो वो मतलब हमको वही चीज, वही कपड़ा, आप वही चप्पल पहनते हो जो आपको कंफर्टेबल है, बाकी जोड़े हमारे पड़े रहते हैं। वो सिर्फ बिल्कुल जी, दिखाने, बोलते ना उनको दिखाने की चीजें अलग है, यूज करने की अलग है। दिस इज अवर जै, लाइफ। सपना जी। जी, जैसे शशि जी ने अभी कहा ना डिजिटल, तो सचमुच मैं तो उनको मेरी फ्रेंड ही थी क्लास की, लेकिन मैं हैरान हो गई, वो इतनी शौकीन थी हर चीज के लिए, बॉम्बे में रहती है, लेकिन वो बोलती है कि अपने अंदर अगर प्यार को स्प्रेड करना है तो ये सब तो करना पड़े। तो उन्होंने, यानी हमारा भी चाहे फोन हो कुछ भी हो, अपने बेटे का नंबर दे रखा था, बोला इन केस अगर मैं नहीं उठाऊं तो ये नंबर है, ये एड्रेस है, ये है। वो रात को 2 घंटे पहले, सोने के पहले फोन को बाहर रख देती है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट फोन हो। बोला अब सबको पता पड़ गया है कि मैं ये टाइम से ये टाइम तक फोन नहीं उठाती हूँ। एक गोदरेज की अलमारी में उसके वाइट कपड़े, वाइट स्वेटर, वाइट नैपकिन, चलो वो उसकी चॉइस थी, वाइट के, लेकिन वो बोलती है 4 या 7 जोड़ी से ज्यादा तुम कितना पहनोगे। और बोला कि ऐसा भी नहीं है कि हम जब ये इकट्ठा करते हैं तो अपने आप को क्या बताते हैं कि हमारे पास अब आगे लक्ष्मी माँ, मतलब पैसा नहीं है, तभी हम स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो हमारे लिए खाना भी बना रही थी ना, मुझे इतना अच्छा लगा कि हम दुनिया भर के जूसेस वगैरह, गेस्ट आते हैं स्टोर करके रखते हैं कि कभी ये पियेंगे वो पियेंगे। उसने उसी समय अपने हस्बैंड से फ्रेश सब्जियां मंगाई, पनीर मंगाया, नारियल पानी फ्रेश मंगाया, और जो फ्रूट फ्रेश था वो खिलाया। मुझे इतना अच्छा लगा उसकी लाइफ देखकर, बहुत ही, यानी पूरा अपने आप को खाली कर दिया है। यस, चलो मेरी घर एक से भी, फ्रेंड है घर में भी यहाँ पे। जितनी जरूरी चीजें, पलंग टेबल, जो बेसिक चीजें, वो ही। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो है। चलो बहुत ही अच्छा है, चलो हम आगे चलें।